Deepak sir, please Okay, proceed. sir. Very good morning, all dear participants. First of all, I welcome you and thank you all for showing interest in our webinar. Myself, Dr. Deepak Nair, IQAC Coordinator and Head of the Department of English of Samadhi College of Arts and Commerce, Bhiwandi, Maharashtra. I wholeheartedly welcome you all to the national webinar in how to lead a happy and healthy life, organized by the Internal Quality Assurance Cell of Bhiwandi, Viewers Education Society, Samadhi College of Arts and Commerce, Bhiwandi. We are indeed pleased with the presence of all the dignified participants. I'm also thankful to you for showing your interest in a webinar. We all know that such webinars have become a new norm in the current academic session and season. They are indeed giving new experiences, new prospects, and new inputs, and we are actually gaining new things and new learning experiences. Of course, this pandemic has created a lot of issues that we are still facing, but it has also given us new modes of learning, new experiences, which certainly we are going to uh, uh, this experience will definitely will have a fruitful effect, I think, to some extent. So today's webinar, as the topic itself indicates, is aimed at gaining some very insightful and useful inputs from today's dignified and very resourceful personality, that is Dr. Hemant Pednekar, sir. Sir, I welcome you, sir, on behalf of myself and the whole institution and management. Thank you, Uh, sir. I'm very sure that his thoughts, his experiences, and whatever he will be sharing with us will certainly will help us to cope up with the current situation that we are facing. I hope to have, I hope that we all will have a wonderful time ahead. And may I now request our principal, Dr. Mohammed Arif, sir, to present a brief note about the college and introduce our resource person, Dr. Hemant Pednekar, sir. Over to you, sir. Arif, sir. क्या मी डेयरी Can you mute him? Arif, sir. Can you mute? Can you hear me? Sangu? Barabar, right. Nana. Hello, I am audible? Yes, Deepak sir. sir? Yes, sir. Yes. Distinguished participants, ladies and gentlemen, it's a pleasure to join all of you. Welcome to the innovation by the people, all happening due to COVID-19. I am pleased to welcome you all to the webinar, How to be Happy and Successful in Life. It aims at providing key inputs to the people on surviving stress-free in this pandemic situation, COVID-19. The spread of COVID-19 has affected almost all spheres of human life, physical, emotional, and economic. In India, we are all navigating through the current lockdown. Businesses are grappling with this unforeseen crisis and trying to mitigate several challenges. Like every other crisis, we will ride this tide, adapt, and come out stronger. Bhiwandi Weavers Education Society, Samadhiya College of Arts and Commerce, was established in 2003 with an aim to cater higher education to underprivileged section of the society, especially to those who come from very poor economic and weaving background. Our institution aims to promote education among the underprivileged sections by giving value-based education while keeping in line with the mission and vision of our governing body. Our social milieu demands a secular, liberal, progressive, and sensitive mode of education. Such education will evolve students to realize and understand the need and necessity of self-development. Keeping in line with social and national interests,
the primary objective of the institution to produce good and responsible citizens who will work towards national development while maintaining the unity in diversity of the society and nation. Our vision is to bring out the privileged section of the society, especially of weaving community, from the predicament of educational backwardness in order to encourage, enlighten, and prepare them to be useful citizens who will remarkably contribute to make a prosperous, secular, healthy, and strong nation with deep-rooted sense of social responsibility. Bhiwandi Vibhas Education Society was fortunate enough to get permission to start senior college from Government of Maharashtra and University of Mumbai in 2003 with the efforts of Honorable MLA Bhiwandi West Abdul Rashid Tahir Momin. The inaugural function presided over by President Bhiwandi Vibhas Education Society Mr. Sharif Hassan Momin of the senior college was held on 14th August 2003 at the Samadia Junior College Hall. Mr. Anis Ahmed, Honorable Minister of Higher Education, Government of Maharashtra, graced the occasion as chief guest. We are proud to have produced more than 1,600 graduates from our institution who have moved ahead for the better prospect in their life. Near about 5,000 books are available in the college library, of which 1,200 are reference books and 20 rare collections. We are also having digital library. Our college is arranged scholarship for the poor and needy students every year. We have an NSS unit in our college which actively observed various days and recognized various activities for the betterment of community. Department of Lifelong Learning and Extension under the University of Mumbai is also active in our college. Number of activities are held through which community as well as students are benefited. We have also signed MOUs with different colleges. Under the MOUs, we will have exchange our students and faculties and also use each other's resources for mutual benefit. College is also running a center of Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad, through which we are providing distance mode education for under and postgraduate students. We are also providing few certificate courses recognized by the Maulana Azad National Urdu University. Our institution strives to give best education to our students, but apart from conventional education and degrees, students should also be made knowledgeable and prepared to meet the demand of career they intended to take. Keeping this in mind, we are introduced seven different certificate courses with minimum fees for the betterment and benefit of our students. We will help and support them to move out from here with extra knowledge and skill. I am profoundly elated to take an opportunity to introduce resource person of today's, Rao Pednekar. Sir has more than 39 years of teaching experience. Sir has written more than 75 books on geography and environment, presented more than 30 research papers in various national and international conferences. Sir is also a research guide for MPhil and PhD students. Sir has also rendered his services as a principal at Chintaman Rao College of Commerce, Sangli, Sonopad Dandekar College, Palghar, and Onde College, Vikramgarh. Sir is also ex-Senate member, University of Mumbai. Sir is also life member of Deccan Education Society, Pune. Apart from this, hypnotism, interior decoration, homeopathy, German language courses, and
other number of certificate courses sir has done. We feel honored to have you with us as a resource person, sir. I believe that by participating in this webinar, we are in the right place and right time. Together, let us accelerate the exchange of ideas and scaling of good practices. I express my deepest gratitude on behalf of staff of our college and students, as well as Bhiwandi Weavers Education Society for its continuous endeavor to provide higher education to the community. Here I conclude myself. Thank you all, and good day. I request resource person of today's program, Dr. Hemant Pednekar, sir, please continue. Thank you, sir. Thank you very much. So, the beginning, friends, I must thank Mr. Sharif Momin, President of Bhiwandi Weavers Education Society, and Secretary Mr. Yusuf Momin, sir, as well as Principal Dr. Arif, sir, for giving me this opportunity. So let us start our session. That is how to be happy and successful in life. And it is really, see, all of us read many books or WhatsApp messages, or we discuss with our friends, and we get novel ideas or very innovative ideas. And if we can share these ideas among ourselves, our life can be happy and successful. So this is an attempt to give you a few ideas which you can, which has got practical utility. ये जो आइडियाज है ये आप अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं ताकि आपका जीवन बहुत सुखी और यशस्वी बन सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी 2020 में आप देखते हैं कि कोरोना आया, सभी जगह लॉकडाउन है और कोरोना पेशेंट भी बढ़ रहे, पॉजिटिव बढ़ रहे। तो ऐसा एक माहौल बना है कि सब बंद पड़ा हुआ है, अभी इसके आगे क्या होगा पता नहीं, ये ऐसा कैसे ऊपर वाले ने किया, सब लोग चिंतित है। तो इसमें हम हैप्पी कैसे हो सकते हैं, इसमें हम सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं? देखो बात ऐसी है कि जो भी है अभी हमें पता नहीं है कि हम इस धरती पर क्यों है। अपने आपको तो मालूम है कि पूरे यूनिवर्स में एक सोलर सिस्टम है, उसमें अर्थ एक प्लैनेट है, उसके ऊपर हम है। कभी कभी हम सोचते हैं अरे हमें पैदा करते समय ऊपर वाले ने तो हमें पूछा नहीं, और कब तक यहाँ है वो भी पता नहीं है, वो कब उठा लेके जाएगा वो उसको ही पता है। तो मन में ऐसे आता है अरे वो अगर पूछता हमें कहाँ पैदा होना है तो हम बोलते हैं अरे इंडिया में भेज रहे हो, ये टाटा बिरला नहीं तो अंबानी किसी के घर में डाल दो, वो तो पूछा नहीं। और जहाँ हम पैदा हुए हैं यहाँ हम है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या मेरा नसीब ही खोटा है या मेरे नसीब में कुछ नहीं। ऐसे नहीं है। आप अगर जरा सोचिए तो पूरे यूनिवर्स में एक सोलर सिस्टम है, उस पर एक प्लैनेट है और बाकी प्लैनेट पे लाइफ फॉर्म नहीं है, ना तो जुपिटर पे है या सैटर्न पे है, लेकिन पृथ्वी पर है। और वहाँ जो लाइफ फॉर्म्स है, मिलियन फॉर्म्स है, समझो एंड्स लेकर इंसेक्ट से लेकर व्हेल तक बहुत सारे हैं। और उसमें सब में सुप्रीम कौन है? तो सुप्रीम है आदमी। और आदमी का जन्म ऊपर वाले ने हमें दिया है, चाहे उसे गॉड कहो, अल्लाह कहो, भगवान कहो, वो एक ही है। तो इसमें उसने जो दिया है इसका मतलब है वो हमें दिलो जान से चाहता है। और अगर इतना देने के बावजूद भी हम खुद को अगर कमनसीब समझते हैं या अनफॉर्चुनेट समझते हैं तो गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। तो देखते हैं इसके आगे हम क्या कर सकते हैं। उसमें और एक बात है कि देखो बात ऐसी है कि उसने सब ये दुनिया तो बनाई, उसमें गेंदे का फूल भी बनाया, गुलाब का फूल बनाया। अभी आप 10 गुलाब का फूल लेंगे या गेंदे के फूल लेंगे, आपको दिखेंगे सब गेंदे के फूल एक जैसे दिखते हैं। ये किसने किया? ये ऊपर वाले ने किया। अगर ऊपर वाला सबको एक जैसे कर सकता है तो भाई आदमी को क्यों नहीं किया? सब लड़के शाहरुख खान जैसे, सब लड़कियां काजोल जैसी, एक ही ठप्पा मार देता तो हो जाता। ये नहीं किया, इसका भी कोई मतलब होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको उसने अलग टाइम देके बहुत बारीकी से बनाया है। ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट।
हर एक में आप में कुछ पोटेंशियल है, ट्राई टू आइडेंटिफाई दोज पोटेंशियल, कि आप में उसमें क्या खूबियां दी। आपको ड्राइंग करना अच्छा लगता है, आप ड्राइंग कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि दैट इज योर गॉड गिफ्ट। ना कि आपको घर वाले बोलते हैं कॉमर्स में जाओ तो कॉमर्स में जाके पढ़ के कॉमर्स चालू रहने दो, लेकिन उसके साथ भी अगर आप ड्राइंग के प्रैक्टिस करते हैं, ऊपर वाले ने जो दिया है उसका अगर मान रखते, सम्मान करते, तो आपको जिंदगी में बहुत तरक्की मिलेगी। अभी सर रतन टाटा ने कहा है कि इस साल बाकी कुछ मत सोचो, पैसा कमाना है, तरक्की करनी है, आगे प्रमोशन चाहिए, ये कुछ इस साल सोचना नहीं है, तो अपनी जान बचानी है। जैसे कहते हैं हिंदी में, सर सलामत तो पगड़ी पचास। तो आप घर पे शांत रहिए, जितना प्रिकॉशन होता है वो लीजिए, स्टीम का इस्तेमाल कीजिए, स्टीम का इस्तेमाल करने से कोरोना का वो वायरस मर जाता है, तो खुद को बचा लीजिए। अभी आचार्य रजनीश कहते थे, वो जानते होंगे आप, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे किताब लिखे। तो वो कहते थे कि हम टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, यूरोप देखने जाते हैं, इंडिया देखने जाते हैं, लेकिन वो बोलते थे कि साल में एक बार भाई आप स्मशान जाइए या कब्रिस्तान जाइए, और वहां जाके आप बैठने से वो जो माहौल वहां का होता है, वो माहौल देखने से आपको पता चलेगा कि अरे आप जिंदा है, इसका मतलब है आप कितने फॉर्चुनेट है। और ये आपको तब महसूस होगा जब आप आपके सामने देखेंगे कोई आदमी, उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है या उसको जलाया जाता है। लेकिन आज नौबत ऐसी आ गई है कि कोरोना में ये इतने मौत हो रहे हैं, हमारे देखते हैं भाई ये फोन आता है, ये इसकी मौत हो गई, उसका वो बाजू वाले बिल्डिंग का वो मर गया, ये होगा। तो ऐसे लगता है कि हम अभी कब्रिस्तान में ही रह रहे हैं, हमारे आजू बाजू इतने सारे डेथ हो रहे। तो लेकिन ठीक है, ये सब ऊपर वाले की मर्जी है। तो आपको ये देखते हुए हमें इसमें भी सोचना चाहिए कि हाउ कैन वी बिकम हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन सच एडवर्स सिचुएशन। ये जो सिचुएशन है, इसमें हम कैसे खुश रह सकते हैं, या हम हमारी तरक्की कैसे कर सकते। सो ये सिचुएशन पहले हम समझ लें। अभी देखो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, या अभी हम ट्रिमेंडस स्ट्रेस लेके बैठेंगे। जैसे ऐसे एग्जांपल याद आया, दो बच्चे हैं और दो बच्चों को बताया जाता है कि कल शाम को आपको इंजेक्शन लेना है। तो एक बच्चा है तो अभी से रोना धोना चालू करता है, बहुत रोता है कि मुझे नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। तो उसमें उसमें 2 दिन के लिए वो तकलीफ में रहता है और बाद में इंजेक्शन देता है। दूसरा बच्चा है, वो सोचता है ठीक है कल शाम को लेना है, ले लेंगे, अरे इतना छोटा सा इंजेक्शन तो है। हमारे फौजी जवान जो है वहाँ तो उनको संगीत अपने बॉडी में भोंपी जाती है, यहाँ तो इंजेक्शन की छोटी सी सुई तो है, उससे क्या घबराना, अरे बिंदास। तो उसको टेंशन नहीं रहता। तो वैसे ही है कि ये अभी की सिचुएशन में, एक तो या आप टेंशन लेके रख सकते, अरे भाई वो मर गया, ये मर गया, वो मर गया, अभी मेरा नंबर कब आएगा। बट टेंशन में रहे तो खेल खत्म। तो टेंशन में रहने से आप वो मौत को इनवाइट करते हैं, ऐसे मत कीजिए। तो ये स्ट्रेस जो है ये भूल जाइए। देखो जो होना है ऊपर वाले की मर्जी से होना है, जो ऐसे नहीं कि हमने खुद तय किया तो ये होता है। तो इसके लिए प्रिकॉशन लेना है और अपना लाइफ जो भी है ये एंजॉय करना है। अभी देखो कोविड-19 ये इट्स अ नेचुरल मैकेनिज्म। माल्थस करके इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि देयर इज अ नेचुरल बैलेंस इन ऑल स्पीसीज ऑन द अर्थ। तो इसके लिए आप देखते हैं कि मच्छर होता है, उनकी पैदाइश कितनी होती है, हजारों मच्छर एक साथ पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका डेथ रेट भी ज्यादा है। लेकिन वैसे लायन के बारे में या टाइगर के बारे में नहीं होता, आदमी के बारे में नहीं होता, क्योंकि उनका डेथ रेट कम है। तो उन्होंने कहा था, माल्थस ने कहा था कि हर एक जीव को कुछ खाना लगता है। जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो खाना भी चाहिए, और इतना ज्यादा खाना, ये अनाज यहाँ पैदा नहीं हो सकता। और आदमी तो सुनने वाला है ही नहीं, उसकी पॉपुलेशन तो बढ़ती ही जाती है। तो ये इन सारे लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा? अगर खाना नहीं मिलेगा तो शायद आदमी एक दूसरे को भी खा जाएंगे, ये भी मुमकिन है। तो वो अवॉइड करने के लिए ये क्या ऊपर वाला क्या करता है कि महायुद्ध होते हैं
या नहीं तो एड्स जैसी बीमारी आती है, उसके पहले प्लेग था, कॉलरा था, तो हजारों लोग, लाखों लोग उसमें मर जाते हैं। कोविड में, कोरोना में भी लाखों लोग वहां मर जाएंगे। फिर कोविड जाने के बाद दूसरा बीमारी नहीं आएगी ऐसे नहीं, दूसरी भी बीमारी आएगी। ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा। तो कोविड ये क्या है, इट्स अ नेचुरल मैकेनिज्म, ये ऊपर वाले का एक मैकेनिज्म है पॉपुलेशन कम करने का। तो ये पृथ्वी जो है, ये दुनिया है, ये ठीक से चलती रहे। ये जो अर्थ हमने देखते हैं, ये 4500 मिलियन का मतलब है 10 लाख वर्ष पहले बनी थी। और ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, इसमें आप प्लांट ले लो, एनिमल ले लो, बर्ड्स ले लो, या फिश ले लो, ये सब आदमी के पहले आ गए हैं इस पृथ्वी पर। आदमी आया है जस्ट 2 मिलियन ईयर्स अगो। कहने का मतलब है एक घर में बड़े भाई बहन होते हैं वैसे, और एक छोटा बच्चा होता है, वैसे छोटा बच्चा या आदमी है। लेकिन आदमी ने क्या किया है, ये छोटे बच्चे जो है अपने बड़े भाई जैसे है, कि समझो प्लांट्स है, एनिमल्स है, फिश है, इन सबको मार डाला है। और इतनी ज्यादा पैमाने पे मार डाला है, तो ऊपर वाला अभी गुस्से में आ गया, और उसमें हमें पनिशमेंट देने के लिए उसने कोरोना भेजा है। और आदमी इतना शर्मा गया है कि अपने इतने बुरे काम किए ये नेचर के साथ, अर्थ के साथ, कि आदमी को अभी मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। और इसके लिए सब आदमी अभी मुंह पे मास्क डाल के घूमते, अपना मुंह छुपाते हैं। तो प्रोबेबली दिस इज द लास्ट चांस टू सेव आवर सेल्फ एंड आवर मदर। तो इसके आगे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, या ओजोन डिप्लीशन है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस है, इस पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन है, ये सब बढ़ते जाने वाला है। और इसके लिए हम अगर संभल जाते हैं और सुधर जाते हैं, तो ये हम खुद को भी बचा सकते हैं और पृथ्वी को भी बचा सकते हैं, और सब अच्छा होगा। So everything is possible, nothing is impossible. So we can save our life and enjoy Earth. So let us, we can be happy and successful. अभी हैप्पीनेस समझने के लिए हमें समझना चाहिए कि हमारा अनहैप्पीनेस कैसे है। जैसे उजाला समझने के लिए हमें अंधेरे के पता होना चाहिए, सुख समझने के लिए दुख का पता होना चाहिए। वैसे हम देखते हैं कि अनहैप्पीनेस क्या है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम अनहैप्पी क्यों होते हैं? तो पहले है हमारी हेल्थ, बीमार पड़ जाते हैं, दर्द होता है तो हम अनहैप्पी होते हैं। बाद में माइंड बॉडी कनेक्शन जो होता है, तो ये पहला जो है इलनेस, तो बीमार पड़ते हैं तो हमारी हेल्थ जो है, देखो पहले तो ऊपर वाले ने हमारा शरीर ऐसे बनाया है कि हमें किसी दूसरे चीज की जरूरत नहीं है। और लेकिन हम क्या करते हैं, हम खाना वक्त पे नहीं लेते, नींद वक्त पे नहीं लेते, और हमारा शेड्यूल जो रहता है ये बॉडी के नीड के मुताबिक नहीं रहता। बॉडी पर हम बहुत अत्याचार करते हैं और जितना हो सके हम उसमें इग्नोर करते। तो बॉडी भी एक मशीन है, तो मशीन का मेंटेनेंस नहीं किया जाए, उसको देखभाल नहीं की जाए, तो मशीन बंद पड़ सकती है और वैसे होता है और हम बीमार पड़ते हैं। उसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि ट्रैफिक सिग्नल में 3 लाइट होते। तो एक आदमी, एक अच्छे शायर थे, और उन्होंने देखा कि ग्रीन लाइट है तो अभी येलो हो रहा है। तो येलो जैसे हो रहा है, वो मोटर कार पे थे और स्कूटर पे थे, तो उन्होंने स्कूटर का स्पीड बढ़ाया और सिग्नल क्रॉस किया। तो पुलिस ने उनको पकड़ा। तो पुलिस ने पूछा, भाई येलो लाइट है आपने क्रॉस क्यों किया? तो ये बहस करने लगे, भाई रेड तो नहीं था, येलो ही था। तो पुलिस वाले ने बताया, भाई येलो का मतलब होता है कि अभी रेड होने वाला है, आपका स्पीड कम करो ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। लेकिन आपने तो स्पीड बढ़ा दिया, तो इसका मतलब है एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। वैसे हमारे बारे में होता है, हमारी बॉडी सिग्नल देती है, सर दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, चेस्ट में पेन होता है, लेकिन हम बोलते हैं अरे छोटा सा है, जाने दो, बुखार है, हम ध्यान नहीं देते। वो येलो सिग्नल है। येलो सिग्नल में कहने का मतलब है हम हमारा काम कम करना चाहिए, लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे नहीं काम पूरा होना चाहिए, और उसमें येलो सिग्नल को हम इग्नोर करते हैं और ज्यादा काम का ये स्पीड बढ़ाते हैं, तो बाद में हम कोलैप्स हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी जो सिग्नल देती है वो अगर हम सही वक्त पे समझ जाए, पहचान जाए, तो हम हमें खुद को बचा सकते हैं। हमारे बहुत सारी बीमारियां हैं,
ये साइकोसोमैटिक है। इसका मतलब है हम जैसे सोचते हैं उसका असर हमारे बॉडी पे होता है। देखो, हम बारिश में समझो गए और भीग गए तो हमें मन में डर होता है, अरे बारिश में भीग गया, अभी बुखार आएगा, और बुखार आता ही है। तो वैसे मैं कीर्ति कॉलेज में था, तभी 150 बच्चों में, ये 20 साल पहले की बात है, तो 150 बच्चों ने बोला सर हमें बारिश में भीगने जाना है। तो उनको लेके मैं 150 बच्चों को भाईंदर उत्तन गया था, और वहां मुझे डर था, भाई इतने बच्चे भीग रहे, कुछ बीमार पड़ जाएंगे तो कैसे होगा। तो मैंने क्या किया, होम्योपैथी की गोली होती है वैसे सफेद गोली ले ली, लेकिन उसमें कोई दवाई नहीं थी, वो सिर्फ शुगर की छोटी गोलियां थी। और बच्चों को झूठ बोला कि भाई जर्मनी से ये गोली इंपोर्ट की है और ये खाने से आपको कुछ बीमारी नहीं होगी, ना आपको जुकाम होगा ना बुखार आएगी। और वो बच्चों ने 4-4, 8-8 गोलियां खा ली, सबने खा ली। और ये यकीन कीजिए, अचरज की बात ये कि एक भी बच्चे को बुखार नहीं हुआ, खांसी नहीं हुई, सर्दी नहीं हुई। कहने का मतलब है उनका माइंड इतना स्ट्रांग हो गया कि अरे मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो वैसे ही है, और कोरोना में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम मन से हार जाते हैं, अरे कोरोना हो गया, नहीं कुछ नहीं होने वाला, मैं अभी जाने वाला हूँ, तो आप 100% जाएंगे। लेकिन आप अगर हिम्मत नहीं हारेंगे तो ये जैसे वो गाना है ना, अगर तू हिम्मत ना हारे आगे तो होने वारे न्यारे। तो ये आपका नसीब बदल सकते, आपकी हिम्मत जो है वो कभी नहीं छूटनी चाहिए। एंड दैट इज व्हाई आवर माइंड प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डिसीजेस। एक छोटा ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, सॉरी ये वीडियो मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। आप जैसे ही बैठ गए हैं सीधे बैठ जाइए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कोरोना में भी बहुत फायदा है। देखो, आपको सीधा बैठना है, कंधे पीछे करने हैं, और आपको जितना धीरे से हो सके सांस अंदर लेनी है। जितनी ज्यादा ले सकते हो वो ले लीजिए। शुरू कीजिए, धीरे से सांस अंदर ले, जल्दी से मत लीजिए, धीरे से लीजिए, धीरे से लीजिए, जितना हो सके लीजिए। बाद में रुक जाइए, जितना ज्यादा वक्त रुक सकते हैं रुक जाइए, और बाद में धीरे से सांस छोड़िए। ठीक है, और उसमें थोड़ा सा और एक ऐड कीजिए। अभी इसका फायदा क्या है मैं बताता हूँ, कि हमारे लंग्स की कैपेसिटी जो है इससे बढ़ती है। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ज्यादा हवा अंदर आएगी, इसका मतलब है ज्यादा ऑक्सीजन आएगा, और ज्यादा ऑक्सीजन आएगा तो 3 फायदे उसके हो सकते हैं। एक, आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, दूसरा आपकी इम्यून कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और तीसरा जो है कि आपका हौसला जो है, आपका हैप्पीनेस है, वो भी आपको बढ़ जाएगा। ये 3 फायदे आपको मिल सकते हैं। उसके साथ में आप आपके मन का डर भी कम कर सकते हैं। तो जब सांस आप अंदर लेते हैं, सर आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। नहीं, ठीक से नहीं आ रही क्या? हेलो, अभी आ रही है? अभी आ रही है? हेलो हेलो हेलो। यस सर आ रही है। हाँ, ओके। तो यस सर आ रही है। हाँ हाँ, ठीक है, थोड़ा धीरे से बोलता हूँ, जोर से बोलता हूँ। हेलो, तो आप ना ये जब सांस आप अंदर लेते हैं तभी सोचना है कि पूरी दुनिया की खुशी मेरे मन में जा रही है और मेरा मन खुशी से भरा जा रहा है। और जब सांस आप छोड़ते हैं तभी आपको बोलना है, मन में सोचना है कि मेरे मन में कोई डर है या कोई फियर है या गुस्सा है या बुरे विचार है। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ 1 मिनट। नेट सही नहीं है। हेलो, हेलो, अभी आ रही है? हेलो, यस सर। हाँ हाँ सर एकदम सही से आ रही है आवाज। हाँ, चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो अभी ये टेंशन जो है, टेंशन की वजह से हम अनहैप्पी होते हैं। और स्टडी का टेंशन है, तो ये जो है एग्जाम का है, वर्क है, तो ये किस लिए होता है? तो पहले केयरलेस एटीट्यूड होता है, वेस्ट टाइम हम वेस्ट करते हैं। और उसमें बीच में अगर आप नौजवान हैं तो कोई लड़की मिल जाती है नौजवान को, ABCD छोड़ो, नैने से नैना जोड़ो, तो ये होता है। तो उसके लिए वेस्ट टाइम बाद में वेस्ट होने से एग्जाम आती है तो आपका टेंशन बढ़ जाता है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उसके लिए भी हम कुछ उपाय कर सकते हैं। तो माइंड हैज ट्रिमेंडस वंडरफुल कैपेसिटी टू कैरी आउट जॉब। आप हिम्मत नहीं हारना। और एक छोटा सा गीत है,
वो आप पढ़ाई के बारे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, आपके कोई दोस्त होते हैं आपको अच्छे लगते हैं, कुछ दोस्त अच्छे नहीं लगते। वैसे कोई सब्जेक्ट है आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आसान लगते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट है आपको अच्छे नहीं लगते और उनका डर लगता है। तो एक छोटा सा गाना है, आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ये पुरानी फिल्म का गाना है, लेकिन इसको आपको पढ़ाई के बारे में इस्तेमाल करना है। देखो, आप सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, मुंह धोते हैं, उसका आपको टेंशन नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसकी आदत बन गई। अगर इसकी तरह अगर पढ़ाई की आदत आपको बन जाती है तो पढ़ाई का डर आपको खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 15 मिनट या आधा घंटा उस सब्जेक्ट को जो डिफिकल्ट है उसके लिए निकालना है। और इसके लिए आप ऐसे कीजिए, 15 मिनट तय कीजिए और वो किताब लेके बैठिए। समझो मैथ्स का किताब है, आपको बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ले पढ़ो ही मत, लेकिन पन्ने उलटते रहो 15 मिनट। वो मैथ्स का किताब छोड़ो मत। आज 15 मिनट, कल 15 मिनट, परसों 15 मिनट, बाद में आपको आपके मन को ही लगेगा, अरे हाँ हाँ ये आसान है, अरे इसके आगे ये है, अरे ये तो बहुत इजी है, मैं काम का डरता था। सर आपकी आवाज हेलो, हाँ हाँ, अभी एडजस्ट किया, अभी देखो। हाँ, सर आपकी आवाज बहुत अटक के आ रही। हेलो, हाँ। तो कहने का मतलब है कि आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे और मैथ्स किताब से आप अगर हर दिन मिलते रहे तो ये जो है आपका मैथ्स से आपका लगाव हो जाएगा और मैथ्स आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो इजी हो जाएगा। तो अवर थॉट्स जो होता है, हम बहुत बार निगेटिव थॉट ये सोचते हैं। समझो एक नया ड्रेस हमने डाला है और नीचे की तरफ थोड़ा सा फटा हुआ है, तो हमारे मन में हमेशा ऐसे आता है कि ये फटा हुआ है, सब लोग देखेंगे, मुझे ताना देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन आपका ड्रेस देखने के लिए किसी को टाइम नहीं है। सो डोंट थिंक व्हाट द अदर पीपल्स आर थिंकिंग अबाउट यू। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या दूसरों के लिए आप कुछ मत ये कीजिए, सिर्फ आप अपने काम पे का ये ध्यान दीजिए और ऑलवेज हैव पॉजिटिव थिंकिंग। आपके मन में, आपके अंदर ही इतनी शक्ति भरी हुई है कि आप जैसा सोचते हैं वैसे होता है। और इसके लिए बच्चे बोलते हैं एक दूसरे से बात करते समय, अरे यार वो सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा भी बोलता है, अरे हाँ मुझे भी डिफिकल्ट लगता है, तुझे भी डिफिकल्ट लगता है, मुझे भी डिफिकल्ट लगता है, अरे चलो जाने दो, दोनों को डिफिकल्ट है। ऐसे मत कीजिए, आप हौसला रखिए, अरे कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, हम कोशिश करेंगे, नहीं तो टीचर से पूछेंगे, नहीं तो दूसरे किसी से पूछेंगे। आप उसका हल निकालने की कोशिश करो। निगेटिव थॉट कभी मन में मत रखो। तो पॉजिटिव थॉट रखने से आप हमेशा आगे चल सकते हैं और आपको खुशी मिल सकती है। ये फियर जो है, डर है, ये अपना सक्सेस मिलने में ये ग्रेटेस्ट हर्डल है। आपको इसके लिए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जिस बात का आपको डर है वो सबसे पहले आप करो, वही चीज करो तो आपका डर खत्म हो जाएगा और आपको सब आसान हो जाएगी। और इसके लिए ये जो है कि सक्सेस कम्स टू दोज हु डेयर एंड एक्ट। जो हिम्मत हौसला रख के आगे जाते हैं ना, उनको ही खुशी मिलती है। दूसरा एक अच्छा ये है एक्सरसाइज है, 1 मिनट टीचर करके बहुत अच्छा किताब है। वहां उन्होंने बताया है कि आप आपके मन का चार्जिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हम एक प्लान करते हैं, उन्होंने 3 वहां बातें दी है। एक गोल सेटिंग, अपना ध्येय निश्चित करना, दूसरा है प्रिपरेशन और प्लानिंग, और तीसरा है रिकवरी। तो अभी गोल सेटिंग समझो आपको करना है, ऐसे समझिए कि आप यूपीएससी एग्जाम में बैठे, आईएएस के एग्जाम में बैठे, और मैं जो कहता हूँ आप प्लीज 1 मिनट के लिए करेंगे, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। आप सब आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए। किया? अभी मैं जो बोलता हूँ वो विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए आपके आंखों के सामने। आप यूपीएससी एग्जाम में बैठते हैं और आज आपका रिजल्ट है और आप एकदम शॉक हो जाते हैं। टीवी पे आपकी तस्वीर दिखाई जा रही है, पूरे इंडिया में आप फर्स्ट आए हैं और पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आपको फोन पे कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं और आपके दरवाजे के बाहर सभी न्यूज़पेपर के रिपोर्टर खड़े हुए हैं उनको आपसे बात करने के लिए।
और आपका आज आपका बहुत खुशी का दिन है। कहने का आंखें खोलिए, देखो आधे मिनट में 1 मिनट में आप ये गोल सेटिंग कर सकते। हमेशा हम गोल सेटिंग कैसे कर सकते, मुझे कामयाबी मिलेगी, फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करते। हमारा दूसरा मन कहता है अरे हट, तुझे कहाँ कामयाबी मिलेगी। लेकिन जब ये हम आंख बंद करके प्रेजेंट टेंस में गोल सेटिंग करते हैं, जैसे वो मुझे मिल गया, तो हमें हमारा मन खुशी से इतना भर जाता है कि हमें काम करना आगे की हौसला बढ़ जाता है और हम हैप्पी हो जाते हैं। अभी देखो माँ बाप ने हमें समझो सराहना की या शाबाशी दी तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें ज्यादा काम करने की हौसला बढ़ जाता है। लेकिन अगर उन्होंने हमें डांटा तो हमारा मूड ही चला जाता है। वैसे अभी सबको कहाँ वक्त है हमें शाबाशी देने का, इसके लिए खुद को शाबाशी देनी चाहिए। और ये जो टेक्निक मैंने बताया, ये इट इज लाइक अ चार्जिंग ऑफ माइंड। हम मोबाइल को बार बार चार्ज करना पड़ता है, वैसे माइंड को भी चार्ज कीजिए और आंख बंद कीजिए और विजुअलाइज समथिंग गुड, समथिंग वेरी ग्रेट। ये उससे जो आपको आनंद मिलेगा, उससे आपके मन का डर निकल जाएगा, निराशा निकल जाएगी और आपका हौसला बढ़ जाएगा और आप हैप्पी हो जाएंगे। अभी अपना ग्रिड जो है, लालच जो है, उसकी वजह से हम दुखी होते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, हमारे वांट्स जो है अनलिमिटेड है, हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, और ये करते करते हमारी जिंदगी खत्म होती। एक कहानी है, बहुत अमीर आदमी था लेकिन बहुत लालची था। तो उसे पता चला कि ये लियो टॉल्स्टॉय की स्टोरी है कि बाजू वाले जंगल में आदिवासी रहते हैं और वे अपनी जमीन मुफ्त में देते हैं, उनको सिर्फ 100 रुपया देना चाहिए, 100 रुपए में कितनी भी जमीन दे देते। तो दूसरे दिन ये आदमी 100 रुपया लेके वहां जंगल में चला गया और मुखिया से पूछा कि मुझे जमीन चाहिए, ये 100 रुपया। मुखिया बोला बहुत अच्छी बात है, आप सुबह आ जाओ। सुबह वो गया वहां, तो मुखिया ने बोला देखो आज सूरज सुबह आप आ गए हैं, आप जितना दौड़ोगे, जितना जमीन पे आप ये करोगे, उतना कब्जा आपका होगा, उतनी जमीन आपकी होगी। लेकिन याद रखना कि शाम होने से पहले आपको यहाँ आना है, नहीं तो जमीन नहीं मिलेगी। वो बहुत खुश हुआ और दोपहर तो इतना जोर से दौड़ते गया। दोपहर के बाद उसे याद आया अरे मुझे वहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन अभी वो थका हुआ था, सुबह जितना जोर से दौड़ नहीं सकता था। फिर भी कैसे भी कोशिश करते करते बहुत तकलीफ हुई, लेकिन कोशिश करते वो वहां आ पहुंचा और मुझे वो बोला मैं जीत गया, इतनी सारी जमीन मेरी हो गई। और तभी उसको हार्ट अटैक आता है और वहां वो मर जाता है। तो मुखिया वहां उसे जमीन में गाड़ देता है। तो उस स्टोरी का टाइटल है आदमी को कितनी जमीन लगती है। और यही हम हमारे जीवन में कहते हैं, पैसे के लालच में हम इतना काम करते, वो पैसा हम जमा करते जाते हैं और जब हमारी उम्र ढल जाती है तो हमें पता लगता है अभी अरे हमें जाने का वक्त आ गया, तो हम अभी और पैसा कमाएंगे, ये करेंगे, और हार्ट अटैक आते हुए हम निकल जाते। तो कि ये क्या कैसी जिंदगी है। अरे ऊपर जाते वाले जो कफन होता है उसमें पॉकेट नहीं होता कि हम हीरे मोती जवाहरत लेके जाए, जो है वही रखना है। और इसके लिए सच्ची दौलत वो नहीं है पैसे वाली है, सच्ची दौलत ये है कि हम एक दूसरे को हेल्प करें। नेचर में देखिए, प्लांट्स देखिए, एनिमल्स देखिए, वो एक दूसरे को हेल्प करते। प्लांट आपको ऑक्सीजन देता है, हम प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते। तो एक दूसरे की मदद करने से ही सच्चा आनंद मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, ना कि पैसे से मिलता है। और दिल मांगे मोर, ये तो बताने के जितना चाहे वो कम है। और टीवी एडवर्टाइजमेंट ये हमें पागल बना देते। और अभी ये देखो ये डैंड्रफ की एडवर्टाइजमेंट, मुझे तो ऐसे लगता है कि दुनिया के सब प्रॉब्लम खत्म हो गए और दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डैंड्रफ। बस उसको खत्म करना कैसे है वो सोचिए, बाकी पेट का वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमें पागल बने और पागल बनते हैं, हम दूसरों के लिए जीते। अगर ये हम सोचे समझे तो ये हमारा दिल तो कभी भरता नहीं। अभी चाइल्ड है, वुमन है, मैन है, नेवर सेटिस्फाइड। एक मजाक की बात है, छोटा बच्चा होता है, उसे कितना भी अच्छा खिलौना दो, उसे दूसरे का खिलौना अच्छा लगता है। औरत जो होती है उसे हमेशा लगता है अरे मेरे ड्रेस से उस दूसरे औरत का ड्रेस बहुत अच्छा है। और आदमी जो होता है उसके बारे में क्या बोलना, मर्द होता है वो, कितनी भी खूबसूरत औरत होने दो,
आगे बोलने की शायद जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो ऐसे है, दे आर नेवर सेटिस्फाइड। तो फेल्योर इन लव, ये प्यार हो जाता है, हार्ट ब्रेक हो जाता है, उसकी ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। और जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे। अरे प्यार का मतलब है एक लड़की से प्यार, एक लड़के से प्यार, और उसके लिए जान देना। प्यार तो हम सभी से करते हैं, प्यार से ही दुनिया चलती है। तो हमारे माँ बाप का प्यार है, हमारे टीचर का प्यार है, फ्रेंड्स से प्यार है, एक कुत्ते से प्यार है, पेड़ से प्यार है, नेचर से प्यार है, इतने सारे प्यार है। और आप छोड़ के सिर्फ एक ही प्यार लेके बैठते हैं, और वो अगर नहीं मिलता है तो नाराज होते हैं। तो इसमें मूर्ख कौन है, आप समझ जाइए। और जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। अगर उसने हमें ना कर दिया तो आपने हौसला नहीं हारना चाहिए। तो मुझे एक मालूम है, एक पॉलिटिकल लीडर है, बहुत बड़े है, उस मामा की लड़की से प्यार करते थे मामा, लेकिन वो गरीब थे, उनके पिताजी बस कंडक्टर थे। तो मामा और थोड़ा अमीर था, हमारा मामा फॉरेस्ट ऑफिसर था। तो उन्होंने क्या कहा कि मामा ने बोला अरे ये भिखारी है, भिखारी को मैं लड़की कभी नहीं दे दूंगा। तो उन्होंने इतना तय किया कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा। आज उनका बहुत सारा कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, या पॉलिटिकल लीडर है, और बहुत सोशल वर्क करते हैं, और इतना बड़ा महल बनवाया है, बहुत अमीर बन गए। ये सिर्फ उन्होंने गुस्से से किया। कहने का मतलब है जो आपको पत्थर फेंक के मारते हैं, वही पत्थर इकट्ठा करके आप अपना टावर खड़ा कर सकते हैं। और अगर ये आप कर सकते हैं तो आप जीत सकते हैं। तो फैमिली रिलेशंस, तो कभी हस्बैंड डोमिनेटिंग होता है और कभी वाइफ डोमिनेटिंग होती है, ये भी है। तो हैप्पी रिलेशन रखने का एक ही मंत्र है, वो हिंदी गाना आपने सुना होगा, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। अरे सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने से क्या होता है, ईगो छोड़ दो, समझ जाओ और एक दूसरे को कोऑपरेट करो, तो फैमिली रिलेशन का टेंशन खत्म होता है। और ये आपको कभी महसूस होता है जब आपकी प्रियतमा और आपका प्रियकर इस दुनिया से चल जाते हैं, तो बाद में आपको याद आता है। तो इसके पहले ये है कि हमारा घर जो है इतना मन में होना चाहिए कि मेरा लाइफ बहुत अच्छा है, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, मेरे टीचर अच्छे हैं, मेरे एजुकेशन इंस्टीट्यूट अच्छा है, मेरा समाज अच्छा है, सब अच्छा है, और मैं अच्छे से आगे जा रहा हूँ। तो अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रेन, तो ये पेरेंट्स जो होते हैं, ये उनका माली का काम करना चाहिए। वो प्लांट्स के ऊपर जैसे वो प्यार करता है, वैसे बच्चों के ऊपर प्यार करना है, लेकिन ज्यादा प्यार नहीं करना है। तो बच्चों को खुद को जो करना है वो करने दो। बच्चा, पेरेंट्स क्या करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। एक माँ बोलती थी लड़के को, अरे बेटा वो रवि देख, वो पढ़ाई में आगे है, वो अशोक देख खेलकूद में आगे है। बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो माँ को कैसे समझाओ। तो उसने क्या किया, सदाफुली का एक छोटा फूल का पेड़ था, छोटा सा प्लांट था, वो एक कुंडी में लगाया और हर रोज उसको पानी देता था और प्रार्थना करता था। माँ के समझ में नहीं आया, अरे ये तुलसी का रोप नहीं है, तुलसी की पूजा करते हैं, लेकिन ये सदाफुली का ये प्लांट है, तो इसकी पूजा ये क्यों करता है। तो माँ बोलती है, अरे क्या करता है तू, क्या। तो बोले मैं प्रार्थना करता हूँ। कैसी प्रार्थना करते हो। मैं कहता हूँ मुझे कमल का फूल दे दो, मुझे गेंदे का फूल दे दो। माँ बोली, अरे पागल हुआ क्या, अरे ये सदाफुली का प्लांट है, तो इससे कमल नहीं लगेगा या गेंदे के फूल नहीं लगेंगे। तो बच्चे ने बोला, माँ मैं खुद हूं ना, वो तू बोलती है तू रवि बन जा, तू अशोक बन जा, वो दूसरे से मुझे कंपेयर करती है, तो मैं क्या करूं अभी बता। तो माँ को गलती समझ में आई। तो कहने का मतलब है हर एक की लाइन अलग है, दूसरे को कॉपी करने मत दीजिए। और बच्चों के ये बोनसाई जैसे करते हैं, उनके रूट्स मत कापिए, उनको ये डिसिप्लिन चाहिए, पनिशमेंट चाहिए, लेकिन उनको प्रेशराइज मत कीजिए, उनको बढ़ने दीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए। और उनके पीठ पे आप अगर उनको एनकरेज करेंगे तो बच्चे बहुत ऊपर चले जा सकते। तो अभी हमें पता चला कि ये जो है, ये आवर हैप्पीनेस एंड सक्सेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर माइंड। तो ये अपने मन जो है उसको संभालना चाहिए। और ये जो है उनमें छोटी छोटी
जो कहानी है वो जरा मैं बताता हूँ। तो एक टीचर ने स्टूडेंट्स को एक बताया, एक ऑरेंज बताया, एक संतरा लेके बताया, देखो एक फल है। बच्चे ने बोला हाँ। तो टीचर ने बोला अभी इसको मैं दबा देता हूँ जोर से, तो इससे आम का जूस निकलेगा क्या? बच्चा बोला नहीं। तो टीचर ने बोला पाइनएप्पल का जूस निकलेगा क्या? तो बच्चे ने बोला नहीं। तो बोला ये इसमें कौन सा जूस निकलेगा? तो बोला संतरे का जूस निकलेगा। तो टीचर ने बोला संतरे का जूस क्यों निकलेगा भाई? तो बोला संतरा है तो संतरे का जूस ही निकलेगा ना। तो कहने का मतलब है आपके अंदर जो होता है, अंदर जो ये है वही बाहर आता है। वैसे हमारा मन है, आप देखते हैं कि कभी आदमी गुस्से में आ जाता है और इतना गुस्से में आ जाता है वो माँ बहन के ऊपर गाली देता है, ये करता है वो करता है। अभी ये कहाँ से आ गया? ये उसके अंदर ही है, वो ही बाहर आएगा। दूसरा आदमी ऐसा होता है कि कितना भी गुस्से में होने दो वो शांत रहता है, इसके मतलब है इसके अंदर शांति है। तो हमारे अंदर जो भी है वही गुस्से में बाहर आता है। इसके लिए हमें संभालना चाहिए कि हमारे मन में हम क्या रखते हैं। दूसरा एक है कि 10th एप्पल प्रिंसिपल। तो उसमें ऐसे है कि एक आदमी रेगिस्तान से चल रहा था, 4-5 दिन उसको कुछ खाने नहीं मिला और बाद में उसमें वहां से बाहर आ गया तो वहां उसे एक एप्पल का पेड़ मिला और बहुत खुश हुआ। और पहला एप्पल उसने खाया, वो इतनी भूख लगी थी तो पहला एप्पल ने उसको इतना आनंद दिया, इतना आनंद दिया कि पूछो मत। दुनिया में से सबसे बेहतर आनंद उसको मिला। फिर उसने दूसरा एप्पल खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया और ऐसे 10 एप्पल खाए। लेकिन 10वां एप्पल खाते समय उसको बिल्कुल आनंद नहीं आया या उसको इच्छा भी नहीं थी। कहने का मतलब है कोई भी चीज हम पहली बार करते हैं तो हमें बहुत आनंद मिलता है। जैसे कुछ लोगों को चाय पीने की आदत है और फिर डर भी होता है इतना चाय पीते हैं, कम करना चाहिए। लेकिन चाय जब आप पीते हैं तो पहला सिप जो लेते हैं उसमें जो आपको आनंद मिलता है वही आनंद आपको 5वें या 8वें 10वें सिप पे नहीं मिलेगा। तो इतने सादे ज्यादा सिप आप क्यों लेते हैं? हम ऐसे भी कर सकते हैं कि चाय पूरा लेने के बजाय कटिंग चाय या थोड़ा सा चाय आप ले लेंगे, बस 2 सिप में आपका मन भर जाएगा। बाद में ऐसे करके आप दिन में 7-8 बार भी चाय ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपका हैप्पीनेस जो है ये आपके ऊपर है। और हम आगे चलते हैं कि हमारा मन जो है ये देखते हैं। अभी ए डायग्राम जो है कॉन्शियस माइंड, हमारा जो बाहर का आउटर माइंड है वो कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड इसका मतलब है हमारा अंतर्मन। अभी बी में आप देखते हैं कि आप जब मुझे सुन रहे हैं और आपके मन में कोई विचार नहीं है तो मैं जब बोल रहा हूँ तो वो सब विचार आपके अंतर्मन में जाएंगे। जैसे अभिमन्यु माँ के पेट में था तभी श्री कृष्ण ने जो कि बोला वो उसके मन में चला गया था, वो कुछ समझ गया। वैसे क्लास में आप बैठते हैं और टीचर का सुनते हैं वो सब अंदर चला जाता है तो कंसंट्रेशन होगा। तो सी डायग्राम में आप देखते हैं एग्जाम में आप बैठते हैं और आपका मन शांत है तो ये सब जो अंदर है वो बाहर आएगा। डी डायग्राम में आप देखते हैं आप तो बैठे हैं, क्या मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं लेकिन आपके मन में दूसरे विचार है। अगर आपके मन में दूसरे विचार है तो जैसे डी डायग्राम में बताया है तो मैं जो कहता हूँ वो आपके अंदर नहीं जाएगा। और ई डायग्राम में ऐसे होता है कि आप एग्जाम दे रहे हैं, लास्ट के 10 मिनट्स है और आपको पेपर खत्म करना है और आपको बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा है तो आप बहुत कोशिश करते हैं लेकिन आपकी डर की वजह से, आपकी एंजाइटी की वजह से ये आपके विचार है ये बाहर नहीं आ रहे और आप हैरान होके पेपर दे के बाहर निकलते हैं और बाद में आपको याद, अरे बाप रे इसका आंसर ये है। तो इसका मतलब इसका एक ही सबक आप हमें सीखना चाहिए कि हमारे माइंड की ताकत बहुत होती है, बहुत होती है। आप यकीन नहीं कर सकते लेकिन माइंड को शांत रखना जरूरी है। कोई भी आपत्ति हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अगर शांत रहेंगे तो आपको आपका प्रॉब्लम का हल बिल्कुल मिल जाएगा। एक दूसरी बात बोलता हूँ कि हमें जंगल में जाने से डर लगता है कि वहाँ जहरीला कीड़ा होता है। अभी जहरीला कीड़ा किसने तैयार किया? ऊपर वाले ने किया। लेकिन वहाँ के आदिवासी होते हैं, उनको एक पत्ता मालूम होता है पेड़ का, तो वो पेड़ का पत्ता काटते हैं और उसको ऊपर लगाते हैं जहाँ कीड़े ने काटा तो दर्द गायब हो जाता है।
अभी ये पत्ता किसने किया? ये भी ऊपर वाले ने किया। जहाँ कीड़ा है वहां पत्ता है। कहने का मतलब है जहाँ प्रॉब्लम है वहां सॉल्यूशन है। तो और ये ऊपर वाला भी मजाक करता है। कुछ दिन पहले मैं ग्रैंड रोड स्टेशन पे था और मैं सोच रहा था, मैं पायदुनी जाना चाहता था, मुझे कुछ पता नहीं था वहां से क्या कैसे जाए, और ऐसे सोच रहा था तो सामने देखा तो बस आ रही है, उसके ऊपर लिखा था पायदुनी। तो कहने का मतलब है ऊपर वाला आपको हल देता है, आंसर देता है। आप सिर्फ टेंशन मत लीजिए, आप आंखें खुली रखिए, कान खुले रखिए, और आपको आंसर आपके बाजू में ही मिलेगा। तो ये जो कुकिंग वेसल जो है, हमारा खाने पीने का बर्तन हम साफ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, बाहर से ज्यादा चमकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो है अंदर से, क्योंकि खाना हम उसके बर्तन के अंदर बनाते हैं और बर्तन अंदर से ही ज्यादा खराब होता है। कहने का मतलब है बर्तन अंदर से साफ करना जरूरी होता है। वैसे हम देखेंगे तो पीपल, ऑब्जेक्ट्स, आइटम्स, इन सब का जो हैप्पीनेस है ये अंदर से आता है। और इसके लिए हमने खुद सोचना चाहिए कि मेरे मन में क्या भरा है। अगर आप आनंद रख सकते हैं तो आपको बहुत खुशी होगी। ऐसे हुआ था, एक साधु अपने दोस्त के साथ चला जा रहा था, तो बीच बाहर पीछे से कोई उसको गाली दे रहा था, माँ बहन के ऊपर गाली दे रहा था। और दोस्त ने पूछा साधु को, आपको गुस्सा नहीं आता? क्यों गुस्सा है भाई? अरे वो आपको गाली दे रहा है, माँ बहन के ऊपर गाली दे रहा है। तो साधु ने बोला, समझो आप मुझे 10 रुपए दे रहे हैं और मैं नहीं ले रहा तो क्या हो जाएगा? तो बोला 10 रुपए मेरे पास रह जाएंगे। वैसे ही वो आदमी मुझे गाली दे रहा है लेकिन मैं उसका स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब है उसकी गालियां उसके पास रह जाएंगी। तो ऐसे अगर आप मन को संभालते हैं, मन में अगर बुरी चीज नहीं रखते, मन में कई बुरे विचार नहीं रखते, तो आप बहुत खुश हो सकते हैं। तो ये ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, बर्ड्स, एनिमल, प्लांट्स, इंसेक्ट, दे एंजॉय लाइफ। अबाउट 80% ऑफ देयर लाइफ इज हैप्पी। वो सोचते ही नहीं। एक समझो, एक अमेरिका में 100 साल की औरत थी और एक इंटरव्यू चल रहा था। तो रिपोर्टर ने पूछा, दादी माँ आप अभी 100 साल की हो गई, ऊपर वाले से क्या मांगोगी? तो बोली, भाई मुझे कुछ नहीं मांगना है, लेकिन मैं जो कुछ मांगती हूँ ऊपर वाला देता है। तो उन्होंने बोला, भाई क्या मांगा आपने? 100 साल तक मांगती हो वो दे रहा है। मैंने ऊपर वाले से बोला, भाई मुझे सिर्फ कल का एक दिन दे दो, सिर्फ एक दिन, और 100 साल तक ऊपर वाले ने मुझे मेरी कबूल की और मुझे 100 साल की देंगे। स्टीव जॉब आप जानते हैं, एप्पल के डायरेक्टर थे, अभी वो नहीं रहे। वो हमेशा यही बोलते थे बच्चों को, भाई ऐसे समझ के चलो कि कल मेरा दुनिया का आखिरी दिन है, और तो आप कितनी जोर से मेहनत से आप काम करेंगे, एंजॉय करेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो वो बनने की कोशिश करो। स्टीव जॉब ने और एक कहा था, बहुत अच्छा है, कि छोटे बच्चों को आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर में एक छोटा सा एक्टिविटी आती है, डॉट्स दिए हुए रहते हैं 1 2 3 4 100 तक, और बच्चों को ऐसे करना होता है, 1 से 2 जोड़ दिया जाए, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे डॉट्स जोड़ते जाएंगे तो आपको दिखेगा वो पिक्चर पूरा होता है, बच्चा खुश होता है। तो स्टीव जॉब कहते हैं ऊपर वाला जो है उसने हम सबके डॉट्स देके रखे। आप सिर्फ नाराज मत हो जाइए, रुक मत जाइए। फेल्यूर आता है, निराशा आती है, फ्रस्ट्रेशन आता है, लेकिन रुकिए मत। खरगोश और कछुआ की जो रेस है, वैसे कछुआ जो है चलते रहता है, चलते रहता है, वैसे आप चलते रहो। अकबर के दरबार में एक सेंटेंस था, ये भी दिन जाएंगे, बुरे दिन है, बुरे दिन जाएंगे, अच्छे दिन है, अच्छे दिन भी जाएंगे, और बुरे दिन जाके अच्छे दिन भी आएंगे। तो आप हौसला रखो आगे चलने का, तो आप कामयाब हो सकते हैं। सो निगेटिव थॉट्स मन में मत रखो, हैप्पीनेस के लिए पॉजिटिव। सो थिंक फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अच्छा होना चाहिए मन में रखो, लेकिन अगर बुरा हुआ तो क्या करना है ये भी सोच के रहो। लो एक्सपेक्टेशन इज द की फॉर हैप्पीनेस। बस ज्यादा की लालच मत करो। अपोजिट टू दिल मांगे मोर, जो मिला है ऊपर वाले ने दिया, अरे बस मैं खुश हूँ। अभी मैंने बहुत साल पहले मैंने बिस्तर पे सोना छोड़ दिया। अभी मैं और मेरी बीवी, मेरा उम्र 65 ईयर्स है, मैं जमीन पे सो जाता हूँ, और सतरंजी या दरी भी नहीं लगती, ऐसे ही जमीन में नींद आ जाती है, पत्थर पे नींद आ जाती है। तो और चाय पीता था, बाद में मैं सोचा कि
चाय में शक्कर क्यों डालूं, तो शक्कर छोड़ दी। बाद में बोला मिल्क क्यों डालूं, दूध क्यों डालूं, दूध भी छोड़ दिया। और बोला इतनी चाय की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए एक 2-3 पार्टिकल्स चाय के डालता था, और थोड़ा ब्राउन कलर हो जाता था, तो उसमें मुझे चाय की खुशी मिलती थी। हिप्नोटिज्म मैंने सीखा है। हिप्नोटिज्म में आप जानते होंगे कि अगर किसी को हिप्नोटाइज किया जाए और उसे करेला खाने दिया जाए, तो और बोला दिया जाए कि भाई ये मीठा है, तो उसको करेला भी मीठा लगता है। कहने का मतलब ये माइंड की ताकत है। आप खुद तय करो कि जो भी मैं जो पानी पी रहा हूँ उसमें ना तो शक्कर है ना मिल्क है और पाउडर भी ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे खुशी मिल रही है ना, तो बराबर खुशी मिलेगी और उससे आप हैप्पी हो जाएंगे। और इसके बाद में मैं दुनिया की कोई भी चाय होने दो, और मेरे चाय से अच्छी ही रहेंगी। तो किसी के घर जाऊंगा या स्टॉल पे मैं चाय पीऊंगा, तो मेरे चाय से वो अच्छी होने से मुझे अच्छी ही लगेगी, मुझे आनंद देगी। लेकिन जो लोग सिर्फ खाने के लिए जीते, वो हमेशा कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं। अरे चाय में शक्कर कम है, अरे दूध जल गया, ये ऐसे है। कहने का मतलब है वो हर बार अनहैप्पी हो जाते हैं। अभी आपको अनहैप्पी होना है या हैप्पी होना है, ये आपके ऊपर है। तो गुड हेल्थ के लिए क्या करना है, हमारा फूड जो है ये सही वक्त पे लेना है और चबा चबा के खाना है। जितना आप चबाओगे, अच्छी तरह से कराओगे, उसमें सलाइवा जो है वो डाइजेशन का काम करेगी, वो उसमें मिक्स हो जाए। पानी भरपूर पीना है और पेशाब के लिए भी जाना है। लड़कियां कई बार ऐसे पेशाब रोक देती है, वैसे नहीं करना है, वो गलत है। पेशाब क्यों होता है, कि हमारे शरीर की गंदगी बाहर जाने के लिए, और इसके लिए पानी पीना और पेशाब करना ये बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करना है, रेस्ट और स्लीप। अभी काम कंटिन्यूस मत कीजिए, थोड़ा सा आपको समझो थकान महसूस होती है, सिर्फ 5 मिनट पे जमीन पे लेट जाइए, उसे शवासन या चैतन्यासन कहते हैं। तो उससे आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिल जाएगा और आपकी थकान दूर हो जाएंगी। और ये इंटरेस्ट के साथ वो फूड खाना है, पानी ये पीना है, एक्सरसाइज। तो एक छोटा सा ये है, बहुत याद रखना, अच्छी सेहत के लिए पाँव रखो गरम, स्लीपर डाल के घर में रहो, पाँव रखो गरम, पेट रखो नरम। बहुत खाना मत खाइए, पेट में थोड़ी जगह रखिए, पेट रखो नरम, सर रखो ठंडा, गुस्सा मत जाने दीजिए, सर रखो ठंडा, सर पे बर्फ रखिए, सर रखो ठंडा, इसके ऊपर भी वैद्य आया तो उसको मारो डंडा। पाँव रखो गरम, पेट रखो नरम, सर रखो ठंडा, इसके ऊपर भी वैद्य आया तो उसको मारो डंडा। इसका मतलब है ये 3 चीज करने से, पाँव गरम रखने से, थोड़ा कम खाने से और गुस्सा न करने से आपको बीमारी नहीं आएगी। तो ये जो है कंपैरिजन, तो ए लाइन है, बी लाइन आप है और सी लाइन है। आप अगर ए से करते हैं तो समझो आपसे कोई गरीब है, उससे कंपेयर करते तो आपको खुद लगेगा कि अमीर है। लेकिन आप से ज्यादा अमीर से सी लाइन से कंपेयर करेंगे तो आप दुखी होंगे कि आपके पास कम है। कहने का मतलब है आप किस नजरिया से देखते हैं कंपैरिजन। तो हमेशा आपकी कंपैरिजन अपने से नीचे वालों को, जैसे वो बोला जाता है कि मेरे पास शूज लेने के लिए पैसे नहीं थे, इसके लिए मैं नाराज था, लेकिन मैंने एक आदमी को देखा उसको पाँव ही नहीं थे, तो अभी क्या बोलूं। तो कहने का मतलब मुझे भगवान में पाँव तो दिए है, उससे ज्यादा मैं फॉर्चुनेट हूँ। तो प्रेजेंट डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन का एक किताब है। तो प्रेजेंट का मतलब है गिफ्ट, प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान काल। तो स्पेंसर जॉनसन बोलते हैं कि ये गिफ्ट ऊपर वाले ने आपको दिया है। जैसे कि हम बोलते हैं कि कोरोना में मेरा नंबर कब आएगा पता नहीं है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं खुशी से जीना चाहता हूँ। और उसके लिए ना मुझे पिछली बातें याद आनी चाहिए, ना मुझे फ्यूचर। इसके लिए हम बोलते हैं रात गई बात गई और छोड़ दो। जैसे कि आप एक सुपर फास्ट कार में हैं और बहुत तेजी से आपको तरक्की करनी है, तो अगर आप कल के बारे में सोचेंगे तो आपका अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा। कल क्या होगा इसके बारे में सोचेंगे तो भी अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा। अगर प्रेजेंट पे आप ड्राइविंग पे ही नजर रखेंगे तो आप तेजी से आगे जा सकते हैं। और इसके लिए पीछे का मत सोचो, आगे का भी मत सोचो, जो भी है उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करो। तो 3 लॉज ऑफ न्यूटन का जो है, जो स्टेशनरी है स्टेशनरी रहेगा, मूविंग है मूविंग रहेगा।
अगर आप बोलते हैं मराठी में कहते हैं असेल माझा हरी तर देईल खाटल्यावरी, मीन्स मेरे नसीब में है तो ऊपर वाला मुझे लाके देगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो ऊपर वाला भी बोलता है भाई आप स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी रहो, वही आपके लायक है। लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं, आगे चलने की कोशिश करते हैं, तो आपको ऊपर वाला भी सहायता करता है। बाइबल में एक सेंटेंस है, डिमांड एंड यू गेट। आप उसे मांगो कि मुझे आपका प्रॉब्लम है, 4 लोगों को बोलो, मदद मांगो, तो आपको मदद भी मिल जाती है। एक्सेलरेशन रिलेटेड टू आवर एफर्ट, जितने आप ज्यादा कोशिश करोगे तो आपको कामयाबी ज्यादा मिलेगी। अटल बिहारी वाजपेयी भी बोलते थे कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। एक्शन अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का 3rd लॉ है। तो ये जैसे कि बोलते हैं कर भला तो हो भला। ये प्रोटेक्ट योर माइंड। आपने एक गुड़िया देखी होगी पिक्चर में, उसका बेस हेवी होता है, उसको आप कैसे भी कितने भी थप्पड़ मारो वो डोलती तो है लेकिन फिर भी खड़ी हो जाती है। वैसे भी हमें रहना चाहिए कि कोई भी कितना बुरा भला बोले, कितना भी अपमानित करे, इंसल्ट करे, फिर आपके जो वैल्यूज है जीवन के, वो अगर स्ट्रांग है तो उसका असर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। आप सीधे के सीधे खड़े रहोगे। फेस द प्रॉब्लम विद ट्रिक। हर एक प्रॉब्लम के पीछे आप उसका स्टडी करो, उसके लिए कुछ खूबियां होती है, कुछ कमियां होती है। जैसे सी वेव है, आपने अगर ये महसूस किया होगा तो अगर समुद्र स्नान करने गए और सी वेव है, उसको पीठ करते हुए आप खड़े हुए, तो सी वेव आती है और आपकी पीठ पे इतनी जोर से फूटती है कि आपका कमर दर्द करने लगता है। लेकिन आपको एक ट्रिक है कि जैसे ही सी वेव आती है तभी आप अगर खुद को उछाल लेंगे तो सी वेव का कुछ असर आपके ऊपर नहीं होगा, इम्पैक्ट नहीं होगा, और सी वेव के साथ आप मजे से बह के किनारे पे आ सकते। कहने का मतलब है जो आपका प्रॉब्लम बनने वाला है वही आपकी ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वही आपको हैप्पीनेस दे सकती है। सो दैट इज वाई कवर माइंड विद द पॉजिटिव थॉट्स। सो साधु बैड वर्ड्स का हमने एग्जाम्पल देखा, तो इसके लिए लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि क्षमा करो और सुखी रहो। ना, तो जो भी है साधु वासवानी कहते हैं भूल जाओ, ये ऊपर वाले ने उसको बोला, हमारा इंसल्ट करने के लिए उसने कर दिया, छोड़ दो, लेकिन उसमें वक्त बर्बाद मत करो। टाइम इज इरिवर्सिबल। टाइम जो है ये घोड़े जैसा है, घोड़ा दौड़ते दौड़ते जाता है, कभी रुकता नहीं, टाइम कभी रुकता नहीं। अगर आप जीवन के शुरू में ही या कभी भी आप थोड़ी कोशिश करो और घोड़े पे सवार होने की कोशिश करो, थोड़ी मेहनत करो, तो आप स्कूल में भी तरक्की कर सकते हैं, काम में भी तरक्की कर सकते हैं, और घोड़े पे बैठ के आराम से आपकी जिंदगी गुजर सकते हैं। लेकिन अब आप लेजीनेस करेंगे, आप काम नहीं करेंगे, पढ़ाई ठीक से नहीं करेंगे, तो आपका पाँव तो घोड़े की जिन में अटका ही रहेगा, घोड़ा रुकेगा नहीं, टाइम रुकेगा नहीं, लेकिन आप कभी ऊपर नहीं चढ़ पाओगे और आप जमीन में घसीटते 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 जिंदगी भर चले जाओगे। फिर ऊपर वाले को दोष मत देना, ये गलती आपकी है कि आपने सही वक्त पे ये किया नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि बचपन में मैंने किया नहीं तो अभी कुछ नहीं होगा। कभी भी आप अगर 60 साल के बूढ़े भी है तो भी आप कोशिश कीजिए कि आज से मैं जिंदगी बदलना चाहता हूँ और बदलनी चाहिए। इसके लिए क्षमा करो और सुखी रहो। आपके मन से बुरे विचार छोड़ दो, दूसरों के बारे में छोड़ना छोड़ दो, और खुद का। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, गिर गया तो भी टांग ऊपर। जो भी होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। मेरा एक दोस्त बस में, वो भी 60 साल का है और उसकी बीबी भी 60 साल की, दोनों बस में से, उनका लव मैरिज था, बस से जा रहे थे थाना से भिवंडी के आगे, बस बंद पड़ गई और दूसरी बस आ गई तो उसमें सब लोग चढ़ गए, ये बेचारे बूढ़ा बूढ़ी नहीं चढ़ पाए। बाद में चढ़ गए तो आगे खड़ा रहने की भी जगह नहीं, वो एकदम पीछे जाके उनको खड़ा रहना पड़ा। बस वाला बस भगा के लेके जा रहा था और इनको बहुत तकलीफ हो रही थी, स्पीड ब्रेकर के पर वो बस उछल रही थी। तो उनके मन में आया कैसा बुरा दिन है ये, आज किसका मुंह देखा, आज मेरा नसीब ही खराब है। लेकिन एक सेकंड में उसने मन के विचार बदल डाले। उनका लव मैरिज था, वो अपनी प्रेमिका के लिए, उसकी बीबी के लिए दौड़ते जाता था। उसने पुराने दिन याद किए और जैसे स्पीड ब्रेकर पे बस ये उछलती थी, उसकी प्रेमिका, उसकी बूढ़ी औरत उसके कब्जे में आती थी, वो उसको कस के पकड़ता था। तो बोला अरे वाह 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 वाह,
ये भगवान ने कैसा मुझे मौका दिया है, इतने सब पब्लिक में मुझे खुलेआम रोमांस करने का मौका दिया है। मैं बीबी को खुलेआम पकड़ सकता हूँ, उसको सहारा देने के बहाने उसके गले लगा सकता हूँ। भाई ये दिन मेरे दुनिया का, मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है। कहने का मतलब है गिर गया तो भी टांग ऊपर, जो भी होता है एक्सेप्ट करो, पॉजिटिव ये करो, तो आप यू विल गेट हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन लाइफ. So friends, thank you very much for the patient hearing, and thank you Arif sir for giving me this opportunity, and thank you for your team. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Sir, it's very pleasure for us to have you in our webinar. Thank you, sir. Thank you so much, sir, once again. That was a really sweet and very enlightening thought by you, sir, and I hope we all will incorporate that in our everyday life. I now take the pleasure and privilege of proposing vote of thanks to each and everyone who are associated with this webinar and cooperated well behind its happening. First and foremost, I express my sincere gratitude to today's resource person, Dr. Hemant Pednekar sir, for his valuable time and his, in fact, priceless input that will be that we all will be cherishing in the coming days. Thank you so much, sir, for being with us and giving your consent for this webinar. We certainly wish you to have again in our forthcoming webinar, sir. Thank you, sir. Thank you. I'm also thankful to our management for their timely assistance and cooperation. I also thank our principal and colleagues for their cooperation and help. Thanks won't be enough to if I won't acknowledge the patient listening and presence of the participants in today's webinar. Thank you all for being here and being with us. The feedback link for the webinar will be posted in the chat box very soon. And you all need to fill the feedback link by before 10 p.m. today, and you will receive a certificate within 2 to 3 days. So all are requested to fill very carefully because corrections cannot be made later. Thank you all again. Hope to meet you again in some other in other webinars. Thank you so much.